So what is the EYM ratio? EYM ratio for electron. So revising your math. You have to respond yes, no, so that we can move on to someone else. Sir, can you repeat the question? Question is EYM ratio or a specific charge for electron. Sir, I don't remember. Okay. Anshul. Yes, sir. What is EYM ratio for electron? Sir, I do have to tell the numbers like. Right. 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg. Gram per kg. Okay. What is the mass of electron? I have to tell you. Sir, 1.672 into 10 raised to minus 27 kg. That is wrong. Sir, can I say? It's 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. 9.1 into 10 to the minus 31 kg. That is the mass of electron. Okay. And let's say Ishika. Yes, Can you sir. help me, Ishika? Yes, sir. Okay. So have you revised? Yes. Okay. What is the charge of neutron? Minus 0. The charge of neutron. Charge of neutron is 0. So neutron is neutral, right? And can you tell me that alpha particle is also called as? The alpha particle is also called as the proton. No, helium nucleus. Very good. Okay. So I guess all of you have revised a little bit. Whoever has not revised, they should revise. Okay. So let's move on to today's, let's say, theory part. What we are going to learn is atomic models. Today we are going to learn atomic models. Some of the models you have already studied in 9th or 10th. So we are going to see some theory part and then move on. We will see the important points. So after, let's say, so we have only completed discovery of electron. We have not done discovery of proton or neutron kind of. Okay. So what happened in case of discovery of proton? So there was a scientist, Goldstein. What he does is he thought, okay, if we are going to take perforated means when we are having holes in anode. So this is what we are doing in cathode ray tube experiment. We are making this anode, right, perforated and putting the fluorescent agent or coating over here. So when this ray is going to, let's say, collide over here, spark will happen and it is going to glow, right? So rather than making this anode perforated, the Goldstein does is he made this cathode perforated. He makes some holes here because he was thinking that if the negative charge is, let's say, moving this side, then there should be positive charge should be moving this side. That's how the neutrality is going to maintain. Electrons are moving this side, cathode ray. Correct, na? Yes or no? Yes, sir. So he was thinking that, so he made a perforated, let's say, cathode and put the fluorescent material over here. Now he just want to check that whether his assumption is true or not. So when he does that and he put the fluorescent material, he can see some sparks, right? So some rays are going to, let's say, collide over here and this surface fluorescent coating that is glowing. Okay. So now he thought that why, let's say, why these are moving, or what are these rays? So initially he said these are canal rays.
Now, if we are going to change the gases, let's say if we have added initially, let's say there was some gases air, right? Let's say after some time we have inserted helium, or we have inserted, let's say, argon or something, right? We are changing the, let's say, the gases inside this instrument. So he can see that the let's say charge by mass ratio for these gases are going to be different. E by m ratio is coming as different. So what is happening over here? What are this positive quantities, positive, let's say, particles which are moving towards the cathode? So what happens is, when a high energy electron is going to collide to atom, let's say, when a high energy electron, let's say argon is the gas, and the electron is colliding over here, what it is going to form? It is going to ionize this, and it is going to ionize this atom, and it will knock out one more electron. So it can happen. Just imagine, okay, this is argon, and this is the outermost electron. One very high energy electron is going to collide over here, and what will happen? This electron is also going to come out. So what will happen? This is going to be enough, right? There is going to be the vacancy will create over here, and then this is going to be 2 electrons. So this is what we are saying, right? So when these in the, let's say, cathode ray tube experiment, when we have applied, let's say, very high voltage, a very high voltage we have applied. So these electrons will be having, like, these electrons are going to be attracted by very higher force. So they are going to have a lot of energy, you know. These are accelerated by very high force because very high voltage are there. So this high energy electrons are going to collide with the gas particles over here. Whichever gas is going to be present, they are going to collide it, and they are going to knock out electron. So sometimes the multiple electrons can be knocked out. So this can also happen that Ar plus, right, is going to collide by electron to form Ar2 plus electron. Yeah. So it can also happen that if we are going to have ionized, let's say, species, and which is moving towards the negative end, the cathode means, cathode means anode towards which cation will move, right? Cathode is cation and electrode, right? So from here it is coming. So cation is having positive charge. So positive charge is going to attract it towards whichever the electrode is, that is going to be cation. Positive is going to attract towards negative. So that's why the cathode is having negative charge. And anode के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, right? So this is, right? What I was saying, yes. So these positively charged particles, which are like ionized gaseous particle, or you can say ions, are going to move towards the cathode. So if we are having a different gases, right? We are going to have different gases. Then what will happen? We will be having a different ions, right? If we are having hydrogen gas, so at such a high energy, it can break into hydrogen atoms. So let's say we are going to get these type of, let's say, ions, right? And for every of these ions, the E by M ratio is going to be different because the charge everywhere is +1. The mass is going to be different. So E by M ratio is going to be different for all of these let's say particles, which is having highest E by M ratio. Highest E by M ratio is for H plus ion. Highest, because mass is lowest, so E by M ratio is going to be highest. So H plus is going to have highest E by M ratio, and this H plus is called proton. This proton name is coming from protium. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, right?
we are having 1H1, which is protium, 1H2, which is deuterium, and 1H3, which is tritium. Okay. So when we are saying hydrogen, generally we mean that is protium, because this is 99.98% available, right? So whenever we are saying hydrogen, that means protium. So hydrogen ion, whenever it is going to form, then the naming is coming from proton is from protium. Protium ka ion bana ye, hai na, proton. So from here, this is the naming has come. Okay, so this is the, let's say, this experiment is the basis of discovery of proton. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे लिखा हुआ है NCERT में, just go through with that, and the discovery of proton and neutron, right? So these positive charge rays are going to called as canal rays. The characteristic I'm just say, highlighting, unlike cathode rays, the positively charged particle depends on the nature of gas present. So for different, let's say if we are going to change the gas, the nature, or you can say EY/M ratio is going to be found. लेकिन सर अंदर गैस कैसे प्रेजेंट होगी क्योंकि वैक्यूम पंप था ना. Very good question. See what happens is absolute vacuum pump हमने डाला था जब हमें इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्वेशन देखना था, ठीक है. And if we are saying about the protons, then we cannot have, अगर हमने गैस नहीं डाली होगी तो फिर हमें नहीं मिलेगा, है ना, राइट? या फिर जो भी मिलेगा वो बहुत थोड़ा मिलेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैक्यूम तो हो नहीं सकता है, थोड़ा बहुत वैक्यूम रह जाएगा, थोड़े बहुत गैस पार्टिकल रह जाएंगे, सॉरी, तो उनके कारण थोड़ा बहुत मिलेगा. तो गैस है अभी, है ना. एनोड रे, ये जो प्रोटॉन्स वाले एक्सपेरिमेंट में वी हैव एडेड सम गैस. कैथोड वाले में हम क्या क्यों हमने गैस हटाई थी? सो वी वांट टू इंश्योर दैट दीज पार्टिकल्स आर कमिंग फ्रॉम कैथोड, है ना, these are not coming from the gas, right? Later on, if we have added the gas also, then the nature has not changed. So that's what we have said in, let's say, cathode ray experiment. Whether you are going to change the electrode or you are going to change the gas inside between the electrodes, the behavior of cathode rays are not going to change. Yes or no, Vaishnavi? Yes. है ना? So we are saying no, here it is not the case, right? And we also know that electron तो electron ही है, लेकिन यहाँ पे तो ions बन रहे हैं. We are not having, है ना, यहाँ पे तो हम we are getting the positively charged ions. So obviously the nature of these ions are going to dependent on nature of gas. So this depends on nature of gas present in the cathode ray tube, ठीक है? And they have said that these are simply positively charged gaseous ion. The charge to mass ratio, that is specific charge or EY/M ratio of the particle, is found to dependent on the gas from which these originate. Okay. Some of these positively charged particles carry a multiple of fundamental unit of electrical charge. That means fundamental unit is 1 electron charge. So they can have, let's say, multiple 2 plus, 3 plus, like that. So like that. The behavior of these particles in the magnetic and electric field is opposite to that observed for electron or cathode rays. Why? Because these are having positive charge, you know, these are carrying positive charge, so that's why their behavior is going to be just opposite of electron, or you can say cathode rays. The smallest and lightest positive particles obtained from hydrogen and was called proton. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया नेम कहाँ से आया, प्रोटियम से प्रोटॉन आया, right? So that's how we are able to get, that is the discovery of, let's say, proton. And what is the discovery of neutron? Neutron के लिए there was scientist Chadwick, so he has bombarded beryllium. Beryllium is nothing but 4 beryllium 9, ठीक है. 4 is the atomic number, 9 is atomic mass, so he is bombarded with alpha particle, beryllium to alpha particle. So what he got carbon. Also what he got is neutron. So this is the radioactive equation. Now in radioactive equation, what you have to, let's say, check, you have to check total charge. So 4 plus 2 6, 6 plus 0, so 6, 9 plus 4 13, and 12 plus 1,
That's why 30. So that's why we are able to get this is neutron, right? Right. So this is the discovery of neutron. This experiment led to the discovery of neutron. You must remember this exercise, let's say equation, right? Now, how we come to conclusion? Let's say we don't know what is this particle is. Let's say I will write some particle P, some particle, let's say X, and I don't know what is going to fit here and what is going to fit here. So again, we are going to check. Over here 4 plus 2 6, over here 6, so we don't need anything, so this is 0. Just to balance the equation. Total mass is 9 plus 4 13, over here 12, so we will be getting 1. So yes, the charge is 0, mass is 1. What is this particle is? This is neutron, so you will understand like this. So that's how we are balancing the radioactive equations. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? Yes. Yes. Yes, yes. So just one second. But I am writing one equation. Just one second. Sir, what is meaning of bombarding? Bombarding is bombarding. Yes, sir. Bombarding is like some beam are going to collide, right? So let's say if you have to balance this reaction, let's say, you know, 92 uranium 235, and I am writing, let's say, the 0 and 1. You know, this is neutron is going to nuclear fission reaction. I am writing. So this is going to be, let's say, 38 SR90 plus 54 xenon 144, right? Plus, let's say this is not balanced, so you have to find, okay, what is going to happen. So what you will do, you are going to check what is the mass difference. Tell me what is going to come over here. 2. So we will say, okay, 92 0, so 92 over here, 38 54, 38 54, 92. 92, so there is nothing, okay, 0, Neutron. right? Now 235 plus 1 236, right? 90 plus 144, that is 234. 234, so the difference is 2. Now you cannot write like this because there is nothing like this, है ना? ये 0 or 2 हो. So you can write 2 times 0 into 1. So how many neutrons are going to let's say emit? That is 2 neutrons are going to emit. Let's say if this is the equation, okay? So that's how you are going to balance the equation. If somebody has written like in the same reaction, somebody has written like this, let's say 56 barium 141 and plus, let's say 36 Kr 92. So how many are going to, let's say, how many neutrons are going to emit? Fast. 3. 3, है ना? So here this is 92 again, so 0. Over here this is 233. So the difference is 3. So then 3 cannot happen over here. So 3 times 3 into 1. So 3 neutrons are going to. Understand how to balance these reactions. समझ में आ रहा है? Yes. Let's say one more. So neutron we are already familiar, right? So if I am going to write like, let's say like this, and I don't know what is the particles is going to be here, and I am writing like this. So what will come over here? Electron. Electron. What is going to come over here? Electron. So when this happens,
This is called K electron capture. So what is you are learning today? Something extra, that is K electron capture. So you have to Google it. What is K electron capture? I guess you have Googled the last two terms which I have told you in last lecture. I have told you to, let's say, Google fluorescent and one more thing I said, X-ray. X-ray. सबने देखा क्या होता है X-ray? ठीक है, तो फॉर टुडे द टर्म इज K electron capture. मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ. होता क्या है, व्हेन वी आर हैविंग ये कुछ हमारे सिलेबस का नहीं है, अभी बाद में है, राइट? सो होता क्या है K electron capture कि व्हेन वी आर हैविंग ए वेरी हैवियर, लेट्स से मेटल, तो हैवियर मेटल्स में प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं. हैवियर मतलब बहुत सारे है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो प्रोटॉन्स बढ़ गए. अब ये प्रोटॉन्स बढ़ गए तो ये क्या करते हैं, जो K मतलब होता है K शेल मतलब n equals to 1, राइट? K शेल इज n equals to 1, हाँ है ना? Yes. है ना? तो ये जो n equals to 1 है ना, फर्स्ट सेल, जैसे आप लिखते हो ना सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, 2,8,1. सो ये जो फर्स्ट सेल है इसको बोलते हैं K शेल. सेकंड को क्या बोलते हैं? L shell. L शेल. थर्ड वाले को M. Similarly MnOP, like that. So this is K cell. तो जब बहुत नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, इस पे और आपको ये भी पता है कि ट्रांस यूरेनियम, all the elements are synthetic, means all are radioactive. They are not naturally occurring, है ना, in the earth, or these are all are synthetic, man-made, right? And after bismuth 83, all the elements are radioactive. Means we are not having a single isotope which are stable. All the isotopes are radioactive. So when we are having a lot of protons, then these heavier metals or heavier elements are radioactive. They are unstable. So what they are doing, in some cases, they can attract the electron. So this electron is going to fall into the nucleus, and then this is called K electron capture. हाँ, ठीक है, तो ये बस आपको पढ़ना है, देखना है, right? This is the, like, in short I have told you, this is something different. So let's say we will move on to, so we have seen that Sir? Sir, I haven't understood that barium reaction you told previously. So you didn't understand? Yeah, kind of. I'm not able to solve it properly. Can you explain it again, please? What I have said, just can you repeat what I have said? So that barium and strontium reaction you just showed below of that neutron. What I have done that time. So we have added mass and we have added charge. Okay. So when we have added mass and charge, what you are going to say, that see that the total charge is same, right? 92. That was the sum reaction over here. So let's say 92 uranium 235 plus 0 and 1 is going to give you barium is 56, and we have taken over here krypton 36, right? And this is, I guess, 141 and this is 92. Okay. Yes. So this is 92. This is this plus this 92. So there is no charge. There is no charge difference. Here 235 plus 1, 236. Over here 141 plus 92 is 233. So what is the difference? 3 charge ka mass ka difference. So how you are going to write 3 times neutron? Okay, sir. Okay. Thank you. So this is related to discovery of, let's say, neutron. Now the next is atomic model, Thomson's model. Excuse me, sir. हाँ. सर, जो न्यूट्रॉन स्टार फॉर्मेशन वाले को भी के इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही बोलेंगे? नहीं, मैं I don't know. मतलब ये कहाँ पे होता है न्यूट्रॉन स्टार फॉर्मेशन? नहीं सर, लाइक जब बहुत हेवी एक स्टार रहता है, it begins to collapse on its own. So I think you are saying about space, right? Yes, sir.
तो वो देखना पड़ेगा. I cannot say ऐसे कि क्या होता है वहाँ पे. बहुत कुछ होता है यार, मतलब हाइड्रोजन भी है ना वहाँ पे, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, they are colliding, fusion vision, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, right? So you don't know which reaction is exactly happening, and there is not a single reaction is happening, there are multiple reactions are happening. Yes, sir. So Thomson model of atom over here. So in the atomic models, right, so first model was given by Thomson. Thomson was responsible for discovery of electron, and he has given the model because he already know that the atom is going to be neutral, because neutral species is only the most stable one. If something is, let's say, if we would have said कि atom जो है ना वो negatively charged है, let's say assume कि atom जो है वो negatively charged है, then what will happen? This negative and this negative is cannot remain together. Atom एक दूसरे को repel करते रहते हैं, right? है ना? Yes, sir. Matter की बात करेंगे. So he knows that okay, this cannot happen. If the negative is already there, then positive will also be there, है ना? So he said that atom is neutral, and this positive charge is, है ना, spread uniformly into the, let's say, that time the discovery of proton has not happened, right? Only the discovery of electron happened. So he said that positive charge is uniformly distributed over the, let's say, atom, and the electrons are embedded like seed, embedded in it. So we are having, let's say, positive. This overall mass is like a positive, okay, and the electrons are as a like seeds are embedded in it. That is called watermelon. Watermelon में ऐसे होता है ना, red, है ना? तो जो red part है, that is going to be positive sphere, right? And this is going to be electron. So that's how he said, okay, this is going to be atom, neutral, right? So there are different names: plum pudding, raisin pudding, or you can say watermelon. Let's say model. Okay. Now, obviously, this model was not very successful. The only thing it is able to explain is the atom is neutral, right? So there is electron and there is some positive charge in it, right? But the good thing is, because of the neutrality of atom and right, no, not this. This part, है ना? Thomson was awarded for this model. He was awarded Nobel Prize. Discovery of electron, as well as, let's say, the model he has given. He was given the Nobel Prize for his experiments. Now, after that, what happened is, there is scientist is Rutherford. Rutherford was doing discovery, or let's say he was involved in radioactivity. So if you know a little bit about radioactivity, then there are two very famous scientists. One is Curie, another one is Rutherford, and both are having the units over radioactivity units based on their names. So one Curie is the unit of radioactivity, and Rutherford is also a unit. So that this is just to signify that Rutherford is doing very good work in the field of radioactivity that time, you know. So that's why people have given the one unit on the name of the scientist. So Rutherford was doing, let's say, radioactivity, and he was able to understand the nature of all these alpha, beta, and gamma particles. So what is his assumption was? His assumption was, since the atom is, है ना, तब तक क्या था, Dalton का मॉडल ठीक था, मतलब चल रहा था, बढ़िया है. Though nobody is able to, let's say कि ये गलत है, but है ना, राइट, किसी साइंटिस्ट ने जो, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो भी मैं समझा देता हूँ. Like in chemistry, the information which we are getting, sometimes you feel like कि इसमें बहुत confusion है, कई बार exceptions हैं. ऐसा सुना है? कितने लोगों ने सुना है chemistry में बहुत exceptions हैं? Anyone? मैंने सुना. हाँ, सुना है ना? अब किसी ने तो कोटा फैक्ट्री देख लिया होगा, तो right? Yes, sir. So I just want to give a clarification over there.
तो होता क्या है, फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं वो है क्लासिकल फिजिक्स, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल हैं, राइट, एंड इन ऑल दोज बिगर पार्टिकल द एरर uncertainty is very less, so that's why Newton's law of motion सब जगह वैलिड हो जाते हैं. When we go to the quantum physics मतलब physics of atoms, electrons है ना, molecules, right, छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. तो जब हम बहुत छोटे लेवल पे जाते हैं तो फिजिक्स में भी अनसर्टेनिटी आने लग जाती है. We cannot say anything, right? We cannot predict the position of electron. Maybe you have heard this uncertainty principle. Yes or no? पढ़ा है ये uncertainty principle? Yes, sir. हाँ. तो इलेक्ट्रॉन या फिर एटम्स, इन सब में अनसर्टेनिटी है कहाँ पे? मॉलिक्यूलर लेवल. और केमिस्ट्री क्या है? इन मॉलिक्यूलर लेवल की साइंस को केमिस्ट्री बोल रहे हैं, whether the reaction is happening or not. So tell me, if there is going to be uncertainty or not? बताओ sir. भैया, होगी ना? होगा ना? अब यही रीजन है. So what happens in chemistry is scientists first see some, let's say some incident is happening, right? So they know the result is this, है ना. उन्होंने दो, let's say मान लो element लिए, right? So he knows what is the input he has done in the, let's say, experiment, and what is the output, right? So we know what we have taken initially and what is the output. What happened in between is all the theory part, because you cannot see, right, कि एक एटम दूसरे एटम से जाके मिला और ऐसे कुछ, right? Every observation is not possible. और कैसे बॉन्ड बनना चालू हुआ, वो एटम मिले तो बॉन्ड बना, क्या बना, right? So in between is theory. Yeah, like you have to hypothesize कि क्या हो रहा होगा यहाँ. I will give you one, let's say, realist example. Let's say you went to market, मान लो, just hope, है ना, and you just come back, then you have seen that your room is like the orientation or the let's say arrangement is different. ठीक है, तो जब आप पहले गए थे तो अरेंजमेंट कुछ और था, ओरिएंटेशन कुछ और था. अभी जब आप आए हो तो वो पूरा फैला पड़ा है, आपको डिस्टर्ब है. Now this is the initial what you have seen, and this is the final you have seen. What you will do? What you will do? You are going to guess कि क्या हुआ होगा. Yes or no? Yes, sir. Then you will give the theories. You will say कि okay, you will say कि यार हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई पेट हो तो उसने ये पूरा डिस्टर्ब कर दिया हो घर, मतलब तुम्हारा रूम. हो सकता है तुम you will say कि मम्मी जो है ना वो सफाई कर रही होंगी, तो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया हो. There is another thing you can say कि पेस्ट कंट्रोल हो रहा होगा मे बी पूरे घर में. Then you are going to say this room can be disturbed. So there could be numerous theory for one, let's say, result. Now you are going to check which of the following, let's say, other condition is going to support your result. तो अगर आपको मान लो केमिकल्स की स्मेल आ रही होगी अपने घर से, then you are going to say okay, this all these, है ना, other theories are going to be, let's say, discarded, and I will say कि ये वाली सही है, right, on the basis of other, let's say, results or assumptions, whatever. And this is exactly happens in chemistry. So you don't know it, like what is going to happen, right? You only know what like initially what was there and finally what was there. In between you don't know. You have to fill the theory. So these scientists have given their theories. Now at the same time, whoever the other scientists were at the same, let's say, same time, they are going to read his theory. They are going to give the, let's say, they are going to give the or raising the question so that they can say कि यार ये देखो इस theory में ये problem है या नहीं है. If everyone is satisfied with the logical, let's say, explanation, then they are going to accept that theory. ठीक है, so that hypothesis is going to be accepted. ठीक है, और फिर और बहुत सारे सालों तक अगर कोई और रिजल्ट हो, मतलब ऐसा नहीं आता है जो इस थ्योरी को काट दे, तो फिर वो लॉ बन जाता है, राइट. दैट्स हाउ द वी आर गोइंग टू से लॉज, राइट. तो पहले क्या हुआ, तो यहाँ पे भी सब जगह यही हो रहा है. तो जब हम कहते हैं तो पहले दो बातें हैं, केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम द लैब, है ना. ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वो हमेशा सही होगा, राइट. हम पहले देखेंगे हुआ क्या, है ना.
the result is not going with our expectation, then we have to search for the answer कि ऐसा ही क्यों हुआ, है ना. मेरे हिसाब से मान लो एक लॉजिक मैंने दिया कि ऐसे से ऐसा होना चाहिए था, let's say, right, but वैसा हुआ नहीं, right, result was different, then we are going to search किए, है ना, different answer आया कैसे, and then we are going to modify or change our logic कि यार ये ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा. So that's why the exceptions are there. क्योंकि हम लोग क्या है ना, कुछ बेसिक आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, बेसिक थिंग कि देखो ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, राइट. समटाइम्स द रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशन, कि हमने बोला कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं होगा. देन वी हैव टू से देखो बेटा ये अलग तरह से हो रहा है. सो दिस इज द एक्सेप्शन पार्ट. इतना अंडरस्टूड है इतनी बात. तो ये साइंस वाली जो थी कहानी मैंने सुनाई, ये भी समझ में आ रही है. और एंड आई हैव गिवन द रीजनिंग because science at the molecular level is very uncertain, so you cannot say, you can only say when you know the result, when you already know कि यार ये हो रहा है, then you are going to identify अच्छा ये क्यों हो रहा है, ठीक है. And then that's why there is going to be some or not many but some exceptions are going to be there. Excited? Hi, hello. हाँ, Yes, sir. तो ये सब थोड़ा थोड़ा रहेगा, बट गुड थिंग इज chemistry is easy in terms of you can solve easily, you can get very good score in chemistry, and probably you can have a better chance to get a very good college. So if your chemistry is good, then what you can do is you are able to solve, let's say, all the questions of chemistry in 40 minutes. So you are going to give a lot of time to physics and maths if your chemistry is good. Okay. And if your chemistry is good, then you are able to score, let's say, out of 100, you are able to score 90 or 90 marks, let's say. And if you are getting around 180 marks, 60%, है ना, 300 का 60% है 180. If you are getting around 180 in JEE Main, then you're like, you will be getting a good college. So your rank is going to be under 10,000 or 15 or 20,000, means you will get NIT or a good college, right? Yes, Manal. सर एनसीईआरटी में सब एक्सेप्शंस हैं? नहीं, सारे एक्सेप्शंस नहीं हैं, कुछ हैं. बट पर ये एक्सेप्शन बायट करना पड़ता है. हाँ, एक्सेप्शन बायट करना पड़ता है कि नहीं, एक्सेप्शंस में क्या होता है कि एक्चुअली व्हेन द क्वेश्चन इज गोइंग टू गो थ्रू फ्रॉम योर go through in front of your eyes several time, वही एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन बार बार घूमता जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा. इसे याद करने जाओगे तो याद नहीं होगा. तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है. यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. तो अभी मैं ये भी बता दूंगा कि हाउ टू स्टडी. मैं थोड़ा सा इस पे भी बात कर लूंगा कि कितना पढ़ना है और हाउ टू मेक ए स्टडी प्लान और समथिंग. बट what I was saying is कि केमिस्ट्री में अगर आपके 90 मार्क्स आ जाते हैं, देन यू कैन इजीली गेट 180, राइट, वेरी इजी. तो कई लोगों के साथ ये एडवांटेज है कि इफ देयर केमिस्ट्री इज गुड, देन दे कैन इजीली गेट अ वेरी गुड लेट्स से रैंक. देखो, कई लोग एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं सब्जेक्ट से. तो सबसे जो ज़्यादा समझ में आएगा इन ऑल दीज थ्री लेट्स से सब्जेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी मैथ्स. सबसे ज़्यादा समझ में आएगा मैथ्स. क्यों? क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको सॉल्व करने के लिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं दैट इवेंचुअली यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट, है ना. मतलब एक गलती करोगे, एक ठोकर खाई, फिर खड़े हुए, फिर दोबारा वही ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, फिर ठोकर खाई, अरे कितनी बार गिरोगे खड़े हो जाओगे, राइट. सो इवेंचुअली you are going to do or you are able to understand maths if you are willing to, let's say, solve questions. important ये भी है, कई लोग बहुत अभी आज की जनरेशन में बहुत सारे लोग लेजी हैं, वो पेन चलाने नहीं चाहते,
है ना, उन्हें बहुत आलस आता, दर्द होता है उनके हाथों में अगर वो 1 घंटे लिख लें तो दर्द होने लग जाएगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको के साथ ये प्रॉब्लम है? से अरे यार सही बात, झूठ नहीं बोलना है, राइट? आई नो दैट, मतलब मैं तुम लोग बच्चों की नस नस से वाकिफ, तुम अकेले थोड़ी ना हो, है ना? तुम्हारे प्रीवियस बैच में भी तो यही प्रॉब्लम थी। खुल के बोलो, हाथ उठाओ, एक ही बच्चा थोड़ी ना हो सकता है। हाँ, जिनको लिखने में आलस आता है, कितने लोग ऐसे हैं? हाथ उठाओ, जिनको लिखने में आलस आता है। देखो धीरे धीरे शर्माते हुए लोग उठा रहे हैं, हाँ, बट ठीक है, पीपल आर ऑनेस्ट, इट्स अ गुड थिंग। सो सी व्हाट हैपेंड इज, और जिन लोगों ने नहीं उठाया उनमें से आधे लोग अभी भी बैठे हुए हैं, राइट? सो डोंट वरी जिन्होंने हाथ, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इज, कुछ लोगों को आलस आता है लिखने में, जिनको लिखने में आलस आता है उनके लिए मैथ्स डिफिकल्ट होने वाला है, राइट? उनके लिए केमिस्ट्री इजी होने वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री में लिखना कम है, राइट? You have to learn, you have to read, but anyway, so what I was saying is कि मैथ्स सबसे आसान है समझना, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें आपको बहुत डिफिकल्ट इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है कि यू कैन रेक्टिफाई योर लेट्स से मिस्टेक्स, यू कैन रेक्टिफाई इट, ठीक है? बार बार सॉल्व कर, जितना ज्यादा घिसोगे, मतलब हमारे टाइम पे तो बोलते थे जितना ज्यादा घिसोगे उतना अच्छा मैथ्स होगा, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा मैथ्स हो जाएगा। और कई बच्चे मैथ्स की तरफ ओरिएंटेड भी बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, सो यस, सो this is quite good, but what happens is maths somewhere maths is little bit tricky and lengthy also. So let's say if you have invested 4 or 5 minutes and your answer is not coming, then it is going to, let's say, put you into very difficult zone. You are going to get nervous, whether you should try like solve again in the paper or you should leave that question. You feel like यार ये तो आता था मुझे और अभी, है ना, क्या मैं करूँ, ये 5 मिनट और इन्वेस्ट करूँ इसमें, राइट? कि कई बार हम लोग क्या करते हैं उसमें सोल्यूशन रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वेदर वॉट एवर आई हैव रिटन दैट इज, कहाँ पे मैंने गलती की है। सो अगेन इट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो मैथ्स में ये सब प्रॉब्लम्स हैं, एंड दैट्स व्हाई मैथ्स इज रिलेटिवली लो स्कोरिंग, emotionally high, and in exam it is low scoring, ठीक है? तो कई बच्चे जो बहुत मतलब इमोशनल हो जाते हैं सब्जेक्ट से, उनके साथ ये डिसएडवांटेज हो जाता है, ये इमोशनल हो जाते हैं कि यार मेरे को मैथ्स इतना अच्छा आ जाता और मैं उतना अच्छा ही करके जाऊंगा, या फिर मेरे को हाईएस्ट मार्क्स चाहिए उसमें, तो वो एक गलती और करते हैं, कई बार वो बाकी सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, बिकॉज दे नो दे नीड मोर टाइम फॉर मैथ्स, एंड जल्दी में मिस्टेक होना ऑब्वियस है ना? जितनी जल्दी आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे सिली मिस्टेक ज्यादा करोगे, यस और नो? Yes. हाँ, तो ऑप्टिमम लाइक लेट्स से टाइम इज गिवन कि देखो आपको क्या करना है, तो हाउ टू लेट्स से सॉल्व अ पेपर, आई विल गिव यू अ ब्रीफ लेट्स से, हालांकि अभी आपने इतने ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व नहीं किए हैं, तो मे बी यू आर नॉट एबल टू रिलेट व्हाट आई एम सेइंग, बट यू कैन रिमेंबर दैट। तो पहली बात तो जो पहला पॉइंट है पेपर, वेन एवर यू आर सॉल्विंग ए पेपर, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में अगर 2 क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट डाल दिए और आपने, और नाइदर स्टार्ट फ्रॉम द एंड, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अभी तक बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने की आदत होती है, बिकॉज देयर यू नीड टू राइट इन सीक्वेंस, है ना? टीचर भी बोलते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करो, तो उनकी एक आदत पड़ जाती है, दे ऑलवेज स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। कितने लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं? दे हैव दिस हैबिट, अगर पेपर होगा तो नंबर 1 से स्टार्ट होगा, यस है ना? So this is one thing, right? You have to improve that you are not going to start with question number 1, ठीक है? It can be easy, but sometime it can be difficult. तो क्वेश्चन पहले 4 क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट डाल दिए, now what will happen? आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, चारों नहीं आए, your confidence from here it is goes here, है ना? बिल्कुल
अब ओपनिंग इतनी खराब हुई है तो बाकी इनिंग में क्या होगा, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो इट कैन हैपन समटाइम, पीपल से कि यार उनका पेपर खराब हो गया, दो उन्हें बहुत कुछ आता था बट पेपर उनका खराब इसलिए हो गया क्योंकि दे आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम और नर्वस हो गए, क्वेश्चन नहीं आए, सो दिस कैन हैपन, ठीक है। अच्छी बात यह है कि जेई मेंस के अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ गए हैं, पहले तो एक ही होता था एक साल में, तो वी कैन नॉट टेक दिस रिस्क। अभी आप रिस्क ले सकते हो, फिर से दोबारा लिख सकते हो, 1 महीने के बाद फिर से एग्जाम होगा, देन यू कैन राइट। सो गुड थिंग इज कि योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर नॉट लिमिटेड, like you are not having only one time people are going to judge, अगर ये वाला अटेम्प्ट खराब हो गया तो अगले साल आओ, राइट? दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, सो इट्स अ गुड थिंग। बट ठीक है, फिर भी हम लोग चाहे ना कि पहली बार में हमारा कुछ अच्छा हो जाए, राइट? सो दैट वी दूसरी बार के लिए हमें वेट ही ना करना पड़े। सो the thing is you are going to start solving question on the basis of, right, where you can see a single line question, right, like that, just randomly go through the paper। जैसे मान लो तुमने केमिस्ट्री उठाया, right? So there are going to be 25 questions, for 1 to 20 are going to be objective type like single correct, and 21 to 25 are going to be fill in the blanks type like integer type, right? So you have to write the integer type answer। तो आपको क्या करना है, पहले 20 या 25 क्वेश्चंस में ऐसे गो थ्रू होना है और देखना है एक लाइन का या 2 लाइन का क्वेश्चन कौन सा, छोटा क्वेश्चन कौन सा है, या फिर ऐसा क्वेश्चन कौन सा है जो आपको अच्छे तरह से आता है, जो चैप्टर अच्छे तरह से आता है, छोटा है और जो चैप्टर बहुत अच्छे तरह से आता है, सॉल्व फ्रॉम देयर, है ना? ऐसे क्वेश्चंस को मतलब जैसे पेपर खोलो, है ना, और देखो, राइट, जस्ट गो थ्रू इट, है ना, एक के बाद एक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, it will take 1 or 2 minutes to go through whole paper, but it is going to be beneficial later on, ठीक है? अब आप क्लिक कर रहे हो, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आया नहीं आया, सेकंड आया नहीं, थर्ड आया नहीं आया, सो इट विल टेक, मान लो अगर हर क्लिक में भी 5 सेकंड लग रहे हैं, है ना, जस्ट टू चेक, then 5 into 25 is going to be 125, right? So that is going to take 2 minutes, ठीक है? तो 2 मिनट गए बर्बाद, कोई बात नहीं, बट उससे आपको क्या पता चला, उससे आपको पता चला कौन से क्वेश्चन इजी हैं। सो इन नेक्स्ट 5 or 6 minutes you will be able to solve 3 or 4 questions, that will give you a boost कि ठीक है ना, कि हमें, है ना, 3-4 क्वेश्चन हमारे बन गए आराम से। इनफैक्ट अगर आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े शार्प हैं और क्वेश्चंस आपने बहुत इजी वाले चूज किए हैं, देन दिस टाइम is going to be in chemistry, this time is going to be little bit less than right 3 or 4 minutes, है ना? 1 मिनट में एक क्वेश्चन, और देखते ही मान लो 2 मिनट में भी हो सकता है, 2 मिनट में 3-4 क्वेश्चन हो सकता है। So this is the only time which is you are going to dedicate just to solve 4 or 5 questions। Now one thing which is going to ensure कि तुमने क्या किया, देखो कंपटीशन हमेशा ना, you have to remember कि कंपटीशन हमेशा टफ क्वेश्चंस, है ना, उल्टा, कंपटीशन हमेशा जो है ना वो इजी क्वेश्चन गलत करने से और छोड़ने से बढ़ता है, राइट? टफ क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया या आपसे नहीं बना तो उतना कंपटीशन नहीं बनेगा, क्योंकि वो टफ है, राइट? जनरली टफ है, और आपको ही नहीं बहुत सारे और लोगों को नहीं आता होगा। एंड व्हाट इज योर एम? योर एम इज टू बीट द कंपटीशन, ठीक है? लेकिन अगर गलती से कहीं टाइम मैनेजमेंट में आपने कोई इजी क्वेश्चन को टाइम नहीं दे पाया, अगर आप सीक्वेंस से चलते गए 1 2 3, आपको पता चला आपने 6 क्वेश्चन लास्ट के जल्दी किए, उन 6 में हो सकता था 2 क्वेश्चन इजी वाले होते, सो दिस इज द लॉस, इट कैन हैपन, है ना? It can happen that you are going to lose these 2 questions, so you are going to lose a lot of marks on these 2 questions, क्योंकि बाकी सबने तो किया है, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, आपने नहीं किया। So that's the, let's say, strategy you have to make for yourself, that you are going to solve the questions। पहले just you are going to go through the paper, then you will identify the easy question, and then you will solve 3 4 5 whatever, so then you are going to ensure that you are not losing on the easy question, है ना? आपने सारे easy खत्म कर लिए, अब या तो जो क्वेश्चन बचे हैं वो मीडियम हैं जिनमें थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर टफ है, राइट, जिनमें और ज्यादा टाइम लगेगा। सो नाउ योर ऑब्जेक्टिव इज just to search those question
जिनमें आप बहुत कंफर्टेबल हो, जिन चैप्टर्स में आप बहुत कंफर्टेबल हो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। तो इस तरह से यू जस्ट हैव टू गो थ्रू, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लिमिट how much time you are going to dedicate. So for chemistry, I will not say go more than 45 minutes, including है ना all the let's say answer की, मतलब जो आप अभी तो खैर ऑनलाइन में तो आंसर तुरंत लग जाते हैं, बट ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम let's say you are going to dedicate 45 minutes. That's it. Then physics, you मतलब ऐसा है कि अगर आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट, केमिस्ट्री पेपर सॉल्व कर रहे हो, और यू आर ऑन द लेट्स से 45 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, यू फील लाइक ये 2 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, बट यू हैव टू स्टॉप ओवर हियर, यू जस्ट हैव टू लीव दीज 2 क्वेश्चंस. व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चन आई विल टेल यू लेटर, ठीक है. तो 45 मिनट के बाद जाना नहीं है. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें आपको 2-4 मिनट ज्यादा लग जाए, देन यू हैव स्टार्टेड अराउंड 42 मिनट एंड you are finishing at 46 or 47th minute, then it is okay. But I don't want कि यार ये 45 minute 50 पहुंच जाए या 55 minutes पहुंच जाए, right? So I don't want, ठीक है, ये नहीं करना है. समझा रहे सबको? Chemistry maximum time you are going to dedicate 45 minutes. Physics, how many time you are going to dedicate? 55 minutes. That's it. The same logic apply over here. ठीक है. And then the maths. Let's say if you are going to, है ना, if you are able to do that, है ना, if you are able to do that कि आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारी इजी और मॉडरेट, क्योंकि देखो आपने पहले इजी कर लिए हैं, फिर आपने मॉडरेट भी कर दिए हैं, तो बचे जो क्वेश्चंस होंगे वो टफ ही बचे होंगे, जो आपके हिसाब से टफ है, राइट. तो आपसे हो नहीं सकते थे यार, इनमें और ज्यादा टाइम लगता था, तो टफ क्वेश्चन ही बचे होंगे. अगर आपने जो मेरी मेथोलॉजी है वो फॉलो की, तो आपके टफ क्वेश्चन आपके हिसाब से जो टफ होंगे वो बचे होंगे, एंड देन यू आर नॉट वरीड कि ठीक है ये तो वैसे भी नहीं आता था या इसमें और ज्यादा टाइम लगता, तो ठीक है अगर मैंने छोड़ भी दिया, राइट. सो यू विल नॉट फील बैड. बट इफ यू आर गोइंग टू गो विद द सीक्वेंस, देन यू कैन फील बैड लेटर ऑन, अरे यार ये तो क्वेश्चन देखा ही नहीं, ये तो ईजी था, लाइक दैट. Now, suppose you are able to finish in that time. तो think about it कि 1 hour 40 minute हुए हैं और आपके 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं. So what will happen? When you will start the mathematics, you will be relieved कि ठीक है बहुत टाइम है, ample टाइम है, and है ना मैं आराम से मैथ्स कर लूँगा. But still, you should not give more than 65 minutes to maths. You should not give 60 to 65 minutes. ठीक है, इससे ज्यादा देना ही नहीं है, ठीक है. Now obviously you are not going to finish at dot over here, तो इन सब में 5 मिनट और डाल दो, right? तो इसीलिए 60 मिनट लिख लेता हूँ. So what will happen? You are able to finish your let's say paper around 2 hour 40 minutes or 2 hour 45 minutes. Now in then these last 15 minutes, I want you to take a call that which part you want to solve more. क्योंकि अब सब जगह टफ बचे हुए हैं, है ना. क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो यहाँ पे भी टफ है, यहाँ पे भी टफ है, यहाँ पे भी टफ है. Now these 15 minutes are very important. क्यों? अगर आप नॉर्मली पेपर सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैथ्स का सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स ये जो टफ वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, इनमें अभी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट लग जाएगा, 5 से लेके 10 मिनट. So if you are not careful, you probably is going to solve 1 or 2 questions in the last 15 minutes. That's it. If you are not careful. But if you are careful and you can choose between कि इनमें से मैं किसको दूं, कौन सा टाइम इसमें से दूं, then you can judge according to your understanding, your preparation कि ये 15 मिनट में किसको दूं, केमिस्ट्री को दूं, फिजिक्स को दूं या मैथ्स में ही कंटिन्यू करूं. So what you are doing is you are ensuring कि मैंने पेपर अच्छी तरह से कर लिया, इजी और मीडियम कर लिए. अगर मेरे पास कुछ टफ है और मुझे लगता है मुझसे हो सकता है, देन स्टिल आई आल्सो हैव टाइम फॉर दैट, आई कैन कम बैक. कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन शुरुआत में नहीं आया है ना, जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तब नहीं आया, लेकिन दिमाग में तो वो कैलकुलेशन चलती रहती है पीछे, है ना, राइट. दैट्स व्हाट हैपन ना, कि कई बार हम लोग पेपर करके आते हैं और दो हमने अभी बुक ओपन करके भी नहीं देखी है, जस्ट पेपर दे के बाहर ही आए हैं तो हमें आंसर क्लिक हो जाता है, अरे इसका आंसर तो ये था,
होता है ऐसा? यस यस सर। है ना? वो क्यों होता है? क्योंकि अभी आपके दिमाग में वो चल रही है कैलकुलेशन, दो आप नहीं सोच रहे हो, बट आपके दिमाग में वो ढूंढ रहा है बैठ के, है ना, कि कहाँ है एट दैट थॉट। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप जब 15 मिनट के लिए यहाँ पे दोबारा चेक करते हो, तो समटाइम्स यू क्लिक दैट सम लेट्स से फॉर्मूला और सम मिस्टेक यू आर मेकिंग ओवर हियर, है ना, देन यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस। तो इस तरह की स्ट्रेटजी में, पेपर स्ट्रेटजी में, you are making sure कि you are not leaving any simple question, you are making sure you are having ample time for every, let's say, subject, and still you are having 15 minutes so that you can take a call कि कौन से वाले टॉपिक को या कौन से वाले क्वेश्चंस को आप दोबारा सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है? So everything is smooth, the chances of making mistakes are less. Now assume that a normal student who is doing the paper and they are not taking a, let's say, they are not rigid with the timeline sometime. So let's say उन्होंने start किया, let's say, maths, and sometime they involved in some question which has taken 10 more minutes. So they intended to finish at around 60 minutes, but they have not checked. So then the time goes to 70 minutes. Now he checked the watch and he said, oh ho, मैं 10 मिनट लेट हो गया. What he will do? What is the students is going to do? वो अगर मान लो फिजिक्स ट्राई कर रहे हैं, then he is going to try to finish either physics or chemistry and to make up this lost time over here, है ना? यही तो होता है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व अटेम्प्ट करते हैं so that we can make up this time. और इस जल्दी जल्दी में कई बार खूब सारी सिली मिस्टेक कर दें. मान लो कई लोग तो चलो ठीक है, यहाँ 70 मिनट है, अभी भी दूसरा पार्ट दूर है, तो फिजिक्स में भी लेट्स से उन्होंने 60 to 70 मिनट्स दे हैव इन्वेस्टेड, राइट? तो अब यहाँ हो गए आपके 140 मिनट्स. अब आपके पास 40 मिनट बचे हुए हैं. नाउ व्हाट विल हैपन? Though you are giving the same amount of time which you are giving earlier, but here you have stress to finish early. What will happen? You'll make more mistakes, more silly mistakes, है ना? कई बच्चे ध्यान नहीं देते हैं. मैंने कुछ बच्चों को ये सुना है, सर हमें 90 मिनट्स लगते हैं मैथ सॉल्व करने में. क्या कर रहे थे? मैथ्स ही सॉल्व कर रहे थे. क्यों? मैथ्स अच्छी तरह से आता है. फिर क्या किया? फिजिक्स और केमिस्ट्री में घास काटी, खूब जल्दी जल्दी सॉल्व किया, खूब सारी सिली मिस्टेक हुई और खूब कम नंबर आए, है ना? ऐसा हो जाता है. तो ये नहीं करना है, राइट? You don't have to do this. So be little bit smart. You can start with, I always say you can start either with physics or chemistry, but until unless your maths is not very good, है ना, मतलब तुम कहो कि मैं बहुत फोड़ू हूँ, maths is like best, right? तब तक maths से start नहीं करना है. Either go with the physics or with the chemistry, है ना? क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स अगर आप शुरुआत में कर लेते हो तो यू हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ योर माइंड, है ना? तो आपका वो माइंड एग्जॉस्ट भी हो जाता है. until unless आपका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे नहीं है, एंड यू रियली लव एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, तो मैथ्स पहले स्टार्ट नहीं करना. आइदर गो विद द फिजिक्स और केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के साथ जाओगे तो एक और एडवांटेज है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है तो उससे 25 में 1/3 हो गया 8 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में आएंगे, और वो अगर आपकी इनऑर्गेनिक अच्छी है तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगी. मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट में वो पूरे फिनिश, ठीक है? फिर आपका अगर ऑर्गेनिक भी अगर आपकी अच्छी है तो फिर और 10 मिनट. जो टाइम लगना है वो बस फिजिकल में लगना है, क्योंकि सॉल्व करना है. बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो 15-20 मिनट में हो जाता है ना? तो ये तो हो गया भाई पेपर की स्ट्रेटजी. सब लोग याद रखोगे क्या करना है? एनी डाउट ओवर हियर? नो सर. ठीक है. नो सर. हाँ बोलो. नो सर, नो डाउट. ओके. अनदर थिंग इज कि पढ़ाई पे कैसे ध्यान दें, एंड हाउ वी शुड फॉलो ए टाइम टेबल, और लाइक
हाउ टू स्टडी. मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज कि कौन सी बुक लें, क्या नहीं लें, कैसे सॉल्व करें, क्या करें. सो ऑब्वियसली अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, राइट. यू आर हैविंग एम्पल टाइम and you want to make a rhythm or kind of a habit to let's say sit for 2 hour or 3 hour. ठीक है. तो पहले तो यही है कि आपको एक हैबिट बनानी है कि 2 से लेकर 3 घंटे तक आप बैठो एक बार में, सो दैट आपकी जो स्टेमिना है, मेंटल स्टेमिना है ना, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. अभी क्या होता है, जैसे आप 2 या 3 घंटे बैठोगे पढ़ने, तो आप थोड़ी देर में बोर हो जाओगे और वो इफिशिएंसी है वो बहुत नीचे हो जाती है, गिरती जाती है ना. कई बार बस जबरदस्ती बैठना होगा, किसी ने बोल दिया होगा बैठना ही है 2 या 3 घंटे, तो जबरदस्ती बैठना पड़ता है. एंड उसमें जो इफेक्टिवनेस है वो जीरो है. दो यू विल फील लाइक कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वो पढ़ाई नहीं है. अच्छा, एक और बात, कई लोग नोट्स लिखते हैं. नोट्स लिखना इज नॉट स्टडी. मतलब वो उसको काउंट कर लेते हैं स्टडी में. उन्होंने मान लो 2 घंटे बैठ के नोट्स लिखे, तो वो उनका स्टडी टाइम हो गया, तो वो स्टडी टाइम नहीं है. यू हैव टू काउंट योर स्टडी आवर. मिनिमम इट शुड बी 3 आवर, है ना. स्टडी आवर का मतलब है जिनमें आप पढ़ रहे हो या सॉल्व कर रहे हो, रीडिंग और रिवाइजिंग समथिंग, और यू आर सॉल्विंग. राइटिंग नोट्स इज नॉट योर स्टडी टाइम, ठीक है, वो अलग है, वो आपको अलग निकालना है. अनदर थिंग, इफ यू आर लेट्स से कई बच्चे अभी तक उनकी हैबिट होती है कि वो लिख लिख के याद करते हैं. कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ये हैबिट है, तो पहले लिखते हैं, लिख के याद करते हैं. हाथ बताओ. तो अभी भी काफी लोग हैं, 12-13 लोग हैं जो लिख के याद करते हैं. Now the thing is, now the time is less and content is more, so it is not going to be feasible that you can write everything. ऐसा अब feasible नहीं होगा. क्या करना पड़ेगा, you have to be smart. कैसे लिखना होगा, तो उसको याद करने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ. जैसे let's say I am reading this NCERT over here, right? And this I used to do that, so I am telling you my let's say strategy. Okay, I am reading, let's say this page I have, maybe this strategy many people are going to follow because it's very simple, though it requires a little bit certain amount of discipline. ठीक है, आपको थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा अपने आप. So let's say if you have read this discovery of proton and neutron, ठीक है, आपने ये पढ़ लिया, सारे पॉइंट्स पढ़ लिए. Now what, obviously ये सब न्यूज़पेपर की तरह लिखा हुआ है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन. कोई तुमसे बोले अच्छा बताओ मुझे क्या लिखा था, तो आप क्या करोगे, स्टैमर करोगे, आप पूरी तरह से क्लियरली नहीं बता पाओगे, राइट. होता है ना ऐसा कि आप पढ़ लेते हो कोई चीज, आपको समझ में भी आ गई है, बट आपसे कोई कहे एक्सप्लेन करो, तो आप उतना मतलब जितनी अच्छी तरह से आपने समझा उतनी अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते. यस नो, है ना. So what you have to do is when you are reading, then you have to understand that whether you can explain or not. तो करना क्या है, जैसे आपने ये पढ़ लिया, तो you have to say it मतलब you have to say it to yourself कि देखो इसका मीनिंग ये है. So when you are going to say about cathode rays, so you are going to say cathode rays is nothing but canal rays are nothing but the particle or gaseous ions present in the cathode ray tube, है ना. ऐसे पॉइंट बना के आपको बोलना है. So these are positively charged gaseous ions, right? Their E/M ratio is going to be different and depends on nature of gas. The charges are going to be, let's say, multiple charges can be present. So you can say Ar plus की जगह Ar2 plus भी हो सकता है, right? So you can say कि जो points हैं उनको ऐसे finger tips पे you can, after reading the let's say content, है ना, उसके आप छोटे पॉइंट बना लो और उनको orally बोलो, लिखो मत, लिखने में टाइम जाता है. It requires a lot of time. When you can explain to yourself, ठीक है, तो आपको वो पूरी चीज समझ में आ गई, तो ये आपको खुद से बोलना है ऐसे, say out loud कि ये बात मैंने समझ ली है, ये मैं इसका मीनिंग ये है, और ये फिंगर टिप्स पे ऐसे पॉइंट्स बना के याद करने हैं. So if you are going to do that, your revision is going to be little bit fast and it is going to be meaningful because you are going to check yourself कि whether you really understood or not.
If you cannot explain yourself, then what you are going to do? You are going to read again. किस पॉइंट में क्या लिखा था, and then you are going to say it out loud. तो ऑब्वियसली बात है, जो लोग लिख के याद करते हैं, मैं मानता हूँ कि लिख के याद करना अच्छा रहता है, बट उतना टाइम नहीं है हमारे पास. सो व्हाट वी कैन डू इज वी आर गोइंग टू रीड इट, पार्ट पार्ट में रीड करेंगे, फिर उसके बाद उनके जो पॉइंट्स हैं उनको खुद से समझाएंगे कि मतलब ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसका मीनिंग ये है, राइट. फिर लेट्स से reading some form derivation, if you are doing some derivation, then okay, obviously there you cannot say it out loud, you have to let's say solve. तो वहाँ derivation में मैथ्स में आप solve कर सकते हो, लिख सकते हो, बट ये केमिस्ट्री के लिए आपको क्या है, बस बोल के भी चलेगा. You don't have to write a whole sentence or you don't have to write everything. बस बोल बोल के आगे बढ़ते जाओ. उससे क्या होगा, आपके रिफ्लेक्स शार्प हो जाएंगे, है ना, फिंगर टिप्स पे चीजें आने लग जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि आपने अपने आप को समझा लिया. द मोर क्वालिटी चेक्स यू आर गोइंग टू मेक ऑन योर सेल्फ, द बेटर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, है ना. तो जो रिवीजन है वो बेटर हो जाएगा. तो पहले तो आपने यही चेक कर लिया कि आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया या नहीं आया, राइट. देन यू आर गोइंग टू लेट्स से समटाइम्स व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, यू डोंट हैव टू चेक द बुक. कई लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते टाइम पे फॉर्मूला देख लेते हैं, कहते हैं फॉर्मूला ही तो है यार, याद हो जाएगा, 10 क्वेश्चन करेंगे याद हो जाएगा. एग्री, बट ये नहीं करना है, ठीक है. कई बार क्या होता है, फॉर्मूला देख देख के आप लोग फॉर्मूले में कुछ चीजें होती हैं मिस कर जाते हो. कोई पर्टिकुलर लेट्स से यूनिट मिस कर जाते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन है विच इज गोइंग टू लेट्स से मेक अनदर फॉर्मूला, वो आप मिस कर जाते हो. आपको लगता है आसानी तो था. तो जो लोग फॉर्मूला देख के सॉल्व करते हैं, अगर फॉर्मूला देख के सॉल्व तो 6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी कर सकता है. उसको बता दो ये फॉर्मूला है और इसमें ये सारे वेरिएबल है, पुट करो, कैलकुलेशन करो, तो क्या रह गई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन रह गई, वो तो कोई भी कर लेगा, राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, you don't have to check the formula. If you are checking the formula, that means you need to give little bit more time to theory. ठीक है. तो ये करना है पढ़ाई में, थोड़ा ये ध्यान रखना है. छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. एक्चुअली होता क्या है कि ये जो छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? कंपटीशन में यही छोटे छोटे पॉइंट आपकी ग्रोथ को इंश्योर करते हैं. जैसे कहीं पे मान लो एक रेस हो रही है, जो फाइनल फर्स्ट होगा और जो लेट्स से 8th पोजीशन पे होगा, एक लैब में 8 लोग ही होते हैं रेस में, उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. 1 सेकेंड और मे बी 0.0 सेकेंड्स में कुछ रहेगा, अगर 100 मीटर की है, इतना ही डिफरेंस होता है. एंड दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स somebody is able to give let's say emphasis or importance to those small points and somebody has not. तो कंपटीशन में भी यही होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये छोटी छोटी स्ट्रेटजी, राइट, जो मैंने आपको बताई है, वही आपको कंपटीशन में थोड़ा और आगे रख देती है ना. थोड़ा आपके एटीट्यूड में चेंज, थोड़ी सिंसियरिटी इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स आपको बहुत अलग कर देती है बाकी सबसे, क्योंकि बाकी लोग ये नहीं कर रहे हैं, है ना. तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना है. आपको पढ़ना कैसे है और कैसे पढ़ना है, इसमें बस मैं ये कहूँगा कि हर दिन जो पढ़ाया जा रहा है, क्लास मिस नहीं करना है, बिकॉज क्लास इज द सोर्स. कई बच्चों को लगता है कि वो वीडियो देख लेंगे, ऐसे हो सकता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में बहुत देर तक पढ़ते हैं, है ना, वो 2-3 बजे तक पढ़ते हैं. कितने लोग ऐसे हैं जो रात में बहुत देर तक पढ़ते हैं, या पढ़ते थे, अभी पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि अभी है नहीं सिलेबस, है ना. अब होता क्या है कि सुबह क्लास होगी 8 बजे, और इफ यू आर लेट्स से स्टडीइंग टिल 2 or 3, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू बी फ्रेश व्हेन यू आर गोइंग टू लेट्स से वेक अप. तो जब तक टीचर ने, है ना, प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ है, जहाँ टीचर आपको समझा रहा है. हर दिन कुछ नया पढ़ने वाले हैं, राइट. अभी तो पहले 1-2 चैप्टर है वो 10th के सिलेबस से बेस्ड होंगे, तो आपको इतना शायद नया नहीं लगेगा, लेकिन लेटर ऑन व्हेन वी आर गोइंग टू टीच, तो सब कुछ नया ही होगा, राइट. और अगर आप थोड़ा सा भी प्रोएक्टिवली बैठे नहीं हो, है ना, कि मेरे को हर चीज समझनी है, बस सुन रहे हो, या फिर थोड़ा लेजी हो गए हो, तो आप यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट. वो आप पूरा मिस कर जाओगे. फिर आप सोचोगे मैं उसका वीडियो देख लूंगा. इतनी सिंसियरिटी रहती नहीं कि हर बार हम वीडियो देख लें, बिकॉज इट इज अगेन गोइंग टू टेक 2 hours. तो कई लोग जल्दी जल्दी देखते हैं, फटाफट आगे, है ना.
स्पीड बढ़ा देते हैं, है ना। तो उसमें भी फिर दिक्कत आती है, कई बार मिस कर जाते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती पूरी तरह से, ऐसा होता है ना, ये सुन लो, है ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो है क्लास, वो मिस नहीं करनी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें ये आदत नहीं डालनी है क्योंकि इनके वीडियोस भी पड़े हैं, तो हम वीडियो देख के समझ लेंगे। उसका रीजन ये है कि आपने ये 2 घंटे तो किल किए ही क्लास के टाइम पे, क्योंकि आप उस टाइम पे तो सोए, बाद में देख लेंगे, या कुछ और किया आपने, पढ़ाई तो की नहीं। और जो पढ़ाई का टाइम था उसके 2 घंटे वीडियो देखने में चले गए, ठीक है। तो ये नहीं करना है, वीडियो तो केवल तभी देखने हैं जब आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, राइट, और यू वांट टू रिवाइज इट प्रॉपर्ली थॉरोली, देन यू कैन सी इट, ठीक है। नहीं तो कोशिश ये करनी है कि हमें क्लास में ही सब कुछ समझ लेना है, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरा, फिजिक्स और मैथ्स में बहुत होता है, कई बार होता है सर ने एक क्वेश्चन कराया, आप सॉल्यूशन लिख रहे हो, एक पर्टिकुलर स्टेप है वो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। मान लो सर ने पहले कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट रहा होगा तो उन्होंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, बट आपको समझ में नहीं आया, यू कैन नॉट रिलेट इट। तो कई बच्चे क्या होते हैं, वो वहीं पे रुक जाते हैं, वो वहीं ब्रेक लगा देते हैं अपनी गाड़ी का, और अब पूरे तरह से आराम से वो उसी स्टेप को खोजने में लग जाते हैं कि ये कैसे आया। होता है ऐसा, यस और नो, किया है आप लोगों ने? ऐसा किया है ना? हाँ सर। खूब बार किया है ना, बार बार ऐसा कि मतलब पूरा सर आगे बढ़ गए बट आप उसी स्टेप पे हो, आप या बगल वाले से पूछ रहे हो भाई कैसे आया, है ना। अभी तो खैर ऑनलाइन चल रहा है, बट व्हेन ऑफलाइन वाज गोइंग टू हैपन तो यू वर डूइंग दिस, है ना। आप बगल वाले से पूछ रहे थे या उसकी कॉपी में झांक रहे थे। तो इसमें होता क्या है कि व्हेन द टीचर मूव्स टू लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन, देन अगेन यू हैव टू कम, लेट्स से यू हैव टू मेक अप दैट टाइम। आपने पीछे छोड़ा, जल्दी जल्दी करोगे तो क्या करोगे, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट बता रहा है, देन यू आर गोइंग टू मिस दैट कॉन्सेप्ट। आपको लग रहा है कि आपने वो कवर कर लिया, आपने बगल वाले फ्रेंड से नोट डाउन कर लिया काइंड ऑफ, बट वो क्लैरिटी जो आप अगर ध्यान से सुनते वो नहीं बनेगी, ठीक है, वो क्लैरिटी नहीं आई। तो क्या करना है, याद ये रखना है, जब भी ऐसा कोई पॉइंट हो जहां पे आप स्टक हो जाओ, एक पेन लो, रेड कलर का पेन, उससे मार्क कर लो जो टाइम आप इन्वेस्ट करने वाले हो अभी, क्योंकि आप ही को निकालना है वो स्टेप कैसे आया, सर तो बता नहीं रहे अभी भी, राइट। तो बस उसको रेड पेन से आप हाईलाइट करो, जस्ट डू नॉट लेट्स से हैव अ लैग बिटवीन योर राइटिंग और योर अंडरस्टैंडिंग एंड द टीचर्स डिलीवरी। तो उसके बीच में टाइम लैग नहीं होना चाहिए, सर बता रहे हैं आप समझ रहे हो, सर बता रहे हैं आप समझ रहे हो, काइंड ऑफ ये चलना चाहिए। क्योंकि जितना टाइम आप अभी इन्वेस्ट करोगे उतना ही टाइम आप शाम को जब खुद से सॉल्व करोगे तब इन्वेस्ट करोगे, तो तब कर लेना। सो मेक इट ऐसे सम रेड कलर, ग्रीन कलर पेन, जो भी लेक्चर के टाइम पे समझ में नहीं आए कॉन्सेप्ट उसको रेड मारो या ग्रीन मारो, और जब लास्ट में जब आप रिवाइज कर रहे होगे तब चेक करो कि वो कैसे आया, क्या 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 होगा, राइट। और नहीं समझ में आया तो अगले दिन पूछ लो, बट यू आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व एट दैट टाइम, है ना, कि मैं अभी बस सॉल्व करके आगे आ जाता हूँ। तो हमेशा आपको रहना है कि आपके पास एम्पल टाइम हो, जब सर समझा रहे हैं तो आपके पास कुछ नहीं हो करने को, सिर्फ सुनने को। इट्स जस्ट लाइक कि एक मैजिशियन स्टेज पे खड़ा हुआ है और वो ऐसे कॉइन्स फेंक रहा है ना। अब आप बताओ, जो कॉइन गिर गया आप उसे उठाने में लगोगे या जो आगे आ रहा है लगातार फेंक रहा है उसे कलेक्ट करोगे? बताओ भाई। क्या करेंगे? अरे बोलो यार, तुम लोग तो शर्मा रहे हो इतना। So the coin which is coming from the ना, magician. तो यही करना है, जब टीचर कुछ समझा रहा है तो आपको बस समझना है। दिस इज द प्राइमरी सोर्स, यू डोंट हैव टू फाइंड द कॉइन कि वो कहाँ गिर गया, लाओ उसे उठा लेते हैं, इसको बाद में उठाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं पढ़ने में, एंड ऑल दीज लेट्स से strategy which I am going to
टेल यू अगेन एंड अगेन, कभी कभी बताता रहूंगा, लेकिन ये आपको सबको करना है, ठीक है। अब आज की क्लास तो यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, तो एक तो आपको के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में गूगल करके समझना है कि क्या होता है, दो आई हैव गिवन यू सम अंडरस्टैंडिंग, और आपको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ के आना है, ठीक है। तो हम रदरफोर्ड मॉडल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो पूरा पढ़ के आना है। रदरफोर्ड मॉडल पहले भी आपने पढ़ा है 10th में या 9th में, राइट, तो काफी कुछ आपको पता भी है, बट जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये थ्योरी खत्म हो जाएगी, अच्छा एक और काम करना है, ये जो मॉड्यूल है ना, एक और काम है, वन मोर होमवर्क, जो मैंने आपको मॉड्यूल दिया है, राइट, उसको ओपन करो। कहाँ है मॉड्यूल, ये रहा मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में ये जो टर्मोलॉजी है ना, रदरफोर्ड की बात, एटॉमिक टर्म्स, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो उसे न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज मास नंबर, राइट, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह की जो ये टर्मोलॉजी है, ये आपको लिखनी है और याद करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये पूछूंगा, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। क्या सेम है, न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप में क्या सेम है, एटॉमिक नंबर। आइसोबार में एटॉमिक मास। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स को एटॉमिक नंबर को बोल भी सकते हैं ऐसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, है ना, एटॉमिक नंबर सेम है, दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। आइसोबार्स मींस एटॉमिक मास इज सेम, दैट मींस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर सेम, एंड यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम, so electron same in either atom or molecule or ion. Isoisters क्या होते हैं, number of electrons as well as number of atoms are same, ठीक है। molecules having same number of atoms and same number of electrons. तो एक तरह से क्या है, प्रोटॉन सेम आइसोटोप्स, न्यूट्रॉन सेम आइसोटोन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम आइसोबार्स, इलेक्ट्रॉन सेम आयंस एटम और मॉलिक्यूल आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स आर सेम, देन आइसोस्टर्स, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका, एक और होता है इसमें आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम है ना, एटम हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड आइसोडाइफर्स। तो ये आपको ये टर्म लिखने हैं, है ना, अपनी अपनी कॉपी में, नोट्स में, राइट, और इनको रिवाइज करके भी आना है। तो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है आपको, और ये टर्म्स लिख के इनको रिवाइज करके आना है, पूछूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। Any question then you can ask, else you can go. हेलो सर। हाँ सर, जो मिलिकन सॉल्ट ड्रॉप मेथड आपने पिछले लेक्चर में सिखाया था, उसमें एक डाउट था। जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, मतलब जब वो ड्रॉपलेट स्मॉल होल से पास होती है तो फिर वो नेगेटिव, अरे भाई, इलेक्ट्रोड पूरा करने, जैसे मान लो एक सर्किट पूरा करना है, तो एक पॉजिटिव प्लेट होगी तभी तो एक नेगेटिव प्लेट होगी। नहीं, वही पूछना था कि वो ऑयल ड्रॉप जो होते हैं वो नेगेटिव बनने के बाद वहाँ पे जाके अट्रैक्ट नहीं होते पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। हाँ हाँ, अट्रैक्ट हो सकते हैं ना। तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती फिर? नहीं, उसमें एक्चुअली क्या है, राइट, यू आर गोइंग टू सी द लोकेशन, है ना। जैसे मान लो एक ये प्लेट है, मैं दिख रहा हूँ क्या, राइट, हेलो, है ना, मान लो ये एक प्लेट है, राइट, ऐसे, तो आप ऑयल ड्रॉप को देख रहे हो, राइट, देन यू आर गोइंग टू, लेट्स से you want to check, you want to have, let's say, more negative charge, more negative repulsion than attraction. तो आप क्या करोगे, उसको जो भी मिड पॉइंट होगा उसके बाद से ऑब्जर्व करना चालू करोगे। मिड पॉइंट तक क्या होगा, राइट, अगर मैं मान लो मैंने मिड पॉइंट से पहले ही अगर ये जो ड्रॉप है ये गिर रही है,
है ना, और इनके बीच का जो भी मिड पॉइंट है उससे पहले ही अगर मैंने स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो ये चार्ज आने के बाद ऊपर भाग जाएगी ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यस और नो, है ना। तो यू आर नॉट गोइंग टू स्विच ऑन दैट टाइम, वो ड्रॉप गिर रही है, देन यू आर गोइंग टू हैव लेट्स से आफ्टर मिड पॉइंट यू आर गोइंग टू सी कि अच्छा अब यहाँ पे रिपल्शन इज गोइंग टू डोमिनेट, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से उसकी डिस्टेंस कम है, पॉजिटिव प्लेट से ज्यादा हो गई, देन यू कैन डू। और सर उसी एक्सपेरिमेंट में टेलीस्कोप क्यों यूज किया? जस्ट टू ऑब्जर्व कि हाँ व्हेन यू कैन से कि जो ड्रॉप है वो उस पे टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर। जब वो रेस्ट पे आ जाएगा ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, राइट। नहीं मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसा टेलीस्कोप क्यों, मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह ऐसा भाई क्यों? हम मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते जा रहे हैं, लेट्स से वी हैव सम कंट्रोल ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, चार्ज हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, राइट। सो वी आर चेकिंग कि किस पॉइंट पे जाके वो उसको कैंसिल आउट कर रहा है, तभी तो हम कहेंगे mg इक्वल्स टू q into e। ठीक है, और कोई डाउट? सर जो लास्ट लेक्चर में आपने फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस जो एक्सप्लेन किया था वो समझा नहीं था। कुछ नहीं, उसमें क्या होता है, अभी हम जो एनर्जी स्टेट्स की बात करेंगे आगे, तो होता ये है कि जनरली इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होता है, हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो लोअर एनर्जी स्टेट में भी वापस आ जाता है, एंड दैट डिफरेंस इज नॉट मोर देन 10⁻⁻8 सेकेंड। इसीलिए मतलब यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं हुआ, मतलब एक जैसे मान लो मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, मैं कहीं गया फिर वापस अपने घर आया तो उतनी एनर्जी मैंने इमिट कर दी, ठीक है, ओके राइट। ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन। फ्लोरोसेंस में क्या होता है, मैं इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट हुआ, फिर उसके बाद एक वो टेम्परेरी स्टेट में जाता है जहां पे वो थोड़ी देर रुक सकता है, दैट इज गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो जो थोड़ी देर रुक सकता है इसीलिए वो बाद में ग्लो हो रहा है कि लाइट गिरने के बाद भी। अब क्या हुआ, जब वो रुक सकता है तो अब वो थोड़ी देर रुकने के बाद वापस आ रहा है, जब वो वापस आ रहा है तो वो एनर्जी की लाइट छोड़ रहा है। हाँ। तो अभी आपने लाइट गिराना बंद कर दिया लेकिन फिर भी ग्लो कर रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट टाइम लैग, जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तब वो एनर्जी छोड़ रहा है, तो वो जो ग्लो आ रहा है वो उस इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन अब वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी छोड़ रहा है, वो एनर्जी इज लाइट। अच्छा, सो मतलब वो जो टाइम लैग है वो मेन रीजन है रीजन है, यस, द टाइम लैग इज द मेन रीजन कि इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन दिस टेम्परेरी स्टे, लेट्स से व्हाट वी आर गोइंग टू से energy state, at that energy state it can stay for a longer time। ओके सर, ठीक है, और कोई भाई डाउट? चलो फिर ओके, बाय बाय, टेक केयर।